السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس، حدیث نمبر 4، لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے یہ لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 4 کا لیکچر لیں گے۔ حدیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث کس چیز کا نام ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے امت کے نام۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کا میسج ہے اپنی مخلوق انسان کے نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میسج حدیث مبارکہ کی صورت میں جس مسلمان کے پاس جس وقت بھی پہنچے، وہ اس کو یوں ہی سمجھے کہ یہ میسج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نام آیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس میسج میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب یہ اہمیت ہمارے ذہن میں ہوگی حدیث مبارکہ کی، تو پھر آنے والی ہر حدیث مبارکہ کو ہم اس نیت سے پڑھیں گے اور اس نیت سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ میسج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ بہت پیار فرماتے تھے۔ آپ کا ایک ایک میسج امت کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث مبارکہ آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیۃ۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا، درود پاک وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس میں نماز بھی ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل کرو۔ روزہ رکھنا یہ بھی ایک عمل صالح ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ رکھو۔ حج کرنا ایک نیک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کرو۔ عمرہ ادا کرنا ایک نیک عمل ہے، اللہ پاک نے فرمایا تم کرو۔ صدقہ دینا ایک نیک عمل ہے، اللہ پاک نے فرمایا کرو۔ ذکر کرنا ایک نیک عمل ہے، اللہ نے فرمایا کرو۔ درود پاک پڑھنا بھی ایک نیک عمل ہے، لیکن اس کا اور دوسرے اعمال کا فرق یہ ہے، اور کسی عمل کے بارے میں میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، اے مسلمانوں تم بھی کرو۔ صرف اور صرف درود پاک ایک ایسا عمل ہے
जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि दरूद पाक पढ़ना इतना बड़ा अमल है कि ये अमल मेरे फरिश्ते भी करते हैं, ये अमल मैं रब ख़ुद भी करता हूँ, और ए मुसलमानों ईमान वालों तुम्हें भी हुक्म देता हूँ तुम भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया तो भेजना तो हमारे ऊपर लाजिम हो गया। अब कुर्बान जाएं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। उन्होंने फरमाया कि देखो, अगर मुझ पर दरूद पाक एक मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देंगे। यहाँ एक सवाल याद रखना कि आफ़ियत से क्या मुराद है। आफ़ियत से मुराद है भलाई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि जो एक मरतबा दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उसके लिए भलाई का एक दरवाज़ा खोल देंगे। और भलाई ये हर वक्त इंसान इसका मोहताज है और हर मौके पर मोहताज है भलाई का, आफ़ियत का। तो दरूद पाक पढ़ना एक ऐसा अमल हो गया कि जिससे हमें भलाई हासिल हो सकती है, जिससे हमें खैर हासिल हो सकती है। और दूसरे मकाम पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाते हैं। और रहमत ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। रहमत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ मेरे सहाबा, जब तक अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं होगी मैं मोहम्मद भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो दरूद पाक एक मरतबा पढ़ने से हमें 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हासिल होती हैं। दरूद पाक एक मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा क़यामत वाले दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जो मुझ पर दरूद पाक कसरत से पढ़ता है। ये फजीलत है दरूद पाक की। दुनिया में कितना फ़ायदा है, आफ़ियत मिल गई, रहमत मिल गई, और क़यामत के दिन क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला बंदा क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। और एक मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह भी फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, वो बंदा बखील है। दरूद व सलाम नहीं पढ़ता तो वो बंदा बखील है। बखील कहते हैं कंजूस को, कि उसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया और उसने दरूद पाक नहीं पढ़ा। इसलिए जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी किसी की ज़ुबान से भी सुनो तो अपने फौरी तौर पर जो सबसे छोटा दरूद है ये ज़रूर पढ़ लिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ने के बहुत से फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक कोई शख्स मुझ पर दरूद भेजता रहता है फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। अब तुम्हें इख्तियार है, दरूद पढ़ने में कमी करो या ज़्यादती करो। जितना मर्जी हम रहमत हासिल करना चाहते हैं, जिसको जितनी रहमत की ज़रूरत हो वो उतना दरूद पाक पढ़ता रहे। एक और मकाम पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दरूद भेजेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देगा, 10 नेकियां अता करेगा।
10 बुराइयां उसकी मिटा देगा। ये दुरूद पाक की बरक़ात हैं, दुरूद पाक की फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ने के मकामात कौन कौन से हैं? हर मजलिस के इख्तिताम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, आज़ान के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, मस्जिद में दाखिल होते वक़्त, मस्जिद से बाहर निकलते वक़्त, दुआ करते वक़्त। दुआ के बारे में याद रखें कि दुआ के शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ो, आखिर में भी पढ़ो। जिस दुआ के अंदर दुरूद पाक शामिल हो गया वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, और जिसमें दुरूद पाक नहीं है उसको वो बरक़ात हासिल नहीं हुई दुआ को। इसलिए हमें चाहिए हम हर मौके पर, हर मामले में कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द जारी रखें। एक औरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और उसने आकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के वली, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है और मैं उसको ख्वाब में देखना चाहती हूँ कि वो किस हाल में है। आप मुझे कोई कलिमात बता दीजिए जिसको पढ़कर मैं सो जाऊँ और अल्लाह मियाँ मुझे ख्वाब में बेटी से मुलाकात करवा दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कुछ बता दिया, वजीफ़ा वगैरह कि ये नफल पढ़ें इस तरीके से और पढ़ के तो आप सो जाएं, अल्लाह पाक आपको बेटी से मिला देगा। दूसरा दिन हुआ तो वो अम्मा रोती हुई हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई। पूछा, अम्मा क्या हुआ? कहने लगी कि मैंने बेटी को देखा तो वो तो जहन्नम के अंदर जल रही है और तारकोल का लिबास उसने पहन रखा है और बहुत परेशान हो गई। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसके लिए दुआ करने लगे। कुछ दिनों के बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जन्नत की सैर करवाई। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चलते जा रहे हैं और आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत आलीशान महल बना हुआ है और उसके बालाखाने में एक लड़की खड़ी है और वो आवाज़ देकर कहती है, ए अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी, आप तवज्जो फरमाते हैं उसकी तरफ। तो वो पूछती है कि अल्लाह के वली मुझे पहचाना? आप फरमाते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं वही बेटी हूँ जिसकी अम्मा कुछ दिन पहले आपके पास आई थी। आपने फरमाया कि ये तो मामला उलट है, उसने तो मुझे बताया था कि वो जहन्नम के अंदर जल रही है और तारकोल का लिबास पहना हुआ है, और ये क्या मामला है? उसने अर्ज किया कि मेरी अम्मा ने जो कुछ देखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उसके बाद यूं हुआ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा हमारे कब्रिस्तान के पास से गुजरा और उसने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा और पढ़कर अल्लाह की जनाब में दरख्वास्त पेश की कि या अल्लाह, ये दुरूद पाक मैं इस कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करता हूँ। उस बंदे का इखलास, उस बंदे का अल्लाह ताला के साथ प्यार और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का मामला इस कदर था कि अल्लाह ने उस दुरूद पाक को कबूल फरमा लिया और उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने, जैसा मुझे अजाब हो रहा था, ऐसे हमारे कब्रिस्तान में 70 अफराद ऐसे थे जिनको ये अजाब हो रहा था। अल्लाह पाक ने सबका अजाब ख़त्म कर दिया दुरूद पाक की बरकत से। और सिर्फ अजाब ख़त्म नहीं किया, जहन्नम से आज़ाद कर दिया दुरूद पाक की बरकत से। और सिर्फ आज़ाद नहीं किया बल्कि अल्लाह पाक ने हम सब को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में एक आली शान महल भी अता फरमा दिया। ये है दुरूद पाक की बरक़ात। दुरूद पाक पढ़ने से ये ऐसी बरक़ात हासिल होती हैं और दुरूद पाक पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने से घर में आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान को आखिरी वक़्त में कलमा तय्यबा नसीब होता है। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका आखिरी वक़्त में कलाम कलमा तय्यबा बन गया,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलाम जिसका हुआ, वो बंदा सीधा जन्नत में दाखिल होगा। दुरूद पाक की बरकत से जन्नत के दरवाजे खुलने आसान हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के दुनिया में हर मामले के अंदर खैर हासिल होती है। हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़िंदगी में ये मामूल था कि आपको जो भी कोई हदिया देता, आप उसका बदल उसको ज़रूर दिया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब कोई भी उम्मती जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का हदिया भेजता है, तोहफ़तन हदियतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम भेजता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदले में अपने उस उम्मती के लिए दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए जिस मौके पर इसने दुरूद पाक पढ़ा है, उस मकसद के अंदर उस मौके पर कामयाबी और बरकतें नसीब फरमा दे। तो हमें जिस मौके पर जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो, ये हमारे लिए बेहतरीन एक कुंजी है हमारे पास, और हमने बहुत से मौके पर इसको आजमाया है कि दुरूद पाक पढ़ने से मसाइल हल हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है कि दुरूद पाक पढ़ने से हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल हो जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें मिल जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ठंडी हवाएं मिल जाती हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें मिल जाती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें मिल जाती हैं, अल्लाह की तरफ से आफियतें मिल जाती हैं। जब इतना कुछ शामिल हुआ तो फिर बंदा दुनिया में परेशान कभी नहीं होता, उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मामूलात में कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द जारी रखें। सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा और अफजल दुरूद पाक है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक सबसे अफजल है। अगर ज़्यादा वक़्त इंसान के पास हो तो कसरत के साथ ये दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब ज़्यादा हैं, इससे बरक़ात ज़्यादा हासिल होती है, इससे अल्लाह की रहमतें ज़्यादा हासिल होती हैं। तो हमें चाहिए हम कसरत के साथ दुरूद पाक का अमल करें। इससे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होगी, हमारे घरों के अंदर अल्लाह की रहमत हासिल होगी। और हमें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल गई तो तमाम कामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, हमारे रिज़्क़ में बरकत हासिल होगी। और मैं तमाम स्टूडेंट से भी गुजारिश करता हूँ, दुरूद पाक को अपना मामूल बना लें, और फिर जब भी आप पेपर करें और टेस्ट दें और उसके अंदर आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और पढ़ के तो अपने कलम के ऊपर, पेन के ऊपर फूंक मार के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब आप अपने कलम को चलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद पाक की बरकत से आपके टेस्ट के अंदर, आपके पेपर में आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। और अल्लाह पाक रूहानी तौर पर आपकी कामयाबी का परवाना जारी फरमाएंगे, और उसके आपको फ़वाइद दुनिया में भी नज़र आएंगे और आखिरत में भी नज़र आएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। एक मरतबा हदीस मुबारका का तर्जुमा दोबारा देख लें, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफियति। हदीस मुबारका को भी ज़ुबानी याद करना है। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन निकलेगा कि आफियत से क्या मुराद है। आफियत से मुराद है भलाई और खैर, यानी भलाई और खैर का दरवाज़ा
کھل جاتا ہے اس بندے کے لیے جس نے درود پاک پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔